Hey, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Commerce की बात है. In this video, we are going to study about three things. First is fiscal policy, in which we are going to study about government expenditure multiplier, tax multiplier, and transfer multiplier. The second thing is about government debt, whether it is beneficial for the economy and not. And the third thing is about the GST. So we are going to study a brief overview of the GST. तो चलिए शुरू करते हैं. Hey, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Commerce की बात है. And in this third part of the chapter number 5, government budget and the economy, we are going to complete fiscal policy. Okay, so what is fiscal policy? The fiscal policy is the instrument through which government control and stabilize the economy थ्रू इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टैक्स एंड द एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो ट्रांसफर. ठीक है, तो इन तीन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है? इट स्टेबलाइज द इकोनॉमी. सो फिर अपन टैक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो टैक्स दो तरीके के टैक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, लमसम टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स के बारे में. एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट टैक्स मल्टीप्लायर. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज एक्सपेंडिचर, हाउ गवर्नमेंट स्टेबलाइज द इकोनॉमी थ्रू एक्सपेंडिचर, एंड व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. Okay, and how government affect the total demand and stabilize the economy through transfers which it makes. Okay, so this we will going to study about in this video. Then after completing this, we are going to study about what is government debt, and then we are going to study about what is fiscal responsibility and budget management act 2003, which was introduced by the government. What are the main feature of that particular act? Then we are going to study about the GST and the overview of the GST. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल पॉलिसी. तो बेटा आप अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी. सो डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी विच इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट विच आर टैक्सेज, एक्सपेंडिचर एंड द ट्रांसफर टू द हाउस होल्ड. ओके, सो इन तीन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? इट स्टेबलाइजेज द इकोनॉमी. सो दो कंडीशन आ सकती है इकोनॉमी के अंदर, या तो इन्फ्लेशन हो सकता है या डिफ्लेशन हो सकता है. ठीक है, डिफ्लेशन को रिसेशन भी मैं बोल सकता हूँ. ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा कि देर इज मच डिमांड इन द इकोनॉमी बट देर इज नो प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन दे विल एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल एंड their income will increase, and therefore the demand will increase, and and since due to higher demand and lower supply, the prices of the commodities will increase. This is known as inflation. And in the recession, the demand is very low, the supply is very high, and in order to reduce the supply, the supplier will reduce the employment, and due to which the person will have a less money to buy the goods, and due to which demand is low, supply is higher, so prices will fall, and there will be recession in the economy. Okay, so these are the two conditions, and in order to stabilize the economy, in order to help the economy to eradicate this inflation and the recession in the economy, government generally implement fiscal policy. So in the fiscal policy, it by increasing and decreasing of the taxes, increasing and decreasing of the expenditure, and increasing and decreasing of the amount of the transfer which is being made to the household, government achieves objective of the stabilization of the economy. Okay, so there are the two type of the fiscal policy. The first type is expansionary fiscal policy, the second type is contradictionary fiscal policy. In the expansionary fiscal policy, it is used in case of recession. Recession के केस में expansionary fiscal policy यूज होता है, और contradictionary fiscal policy is used in the case of the इन्फ्लेशन. जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस बढ़ा देती है, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट रिड्यूसेस. ओके, अब ये किस तरीके से करती है अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू द कीन्स इन हिज बुक of the general employment level, about which we have talked in the chapter number 1. You can watch my video of the chapter number 1, okay, about that book. He has given the definition of fiscal policy as the policy which is being introduced by the government to control and to stabilize the output and the employment in the particular economy, and that is known as fiscal policy according to the Keynes. Okay, so the government can change and stabilize the economy with the help of its three instruments. The first instrument is known as taxes, the second instrument is known as expenditure, and third one is known as transfer. Okay, so we will study about taxes, expenditure, and the transfer one by one. So first we will study about how government will change or will stabilize the economy with the help of its expenditure. Okay, so चलिए, तो सबसे पहले बेटा अपन फिजिकल पॉलिसी के अंदर ये बात करने वाले हैं कि है ना, अपन ने नेशनल इनकम में पढ़ा था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो चैप्टर था अपना.
ठीक है, कि उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो इसके अंदर अपन ने एक कंजम्पशन मेथड पढ़ा था। कंजम्पशन मेथड में अपन ने ये पढ़ा था कि जितना कंजम्पशन करेंगे अपन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम या इनकम मेरे को अगर निकालनी है तो इनकम के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो अपन ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा था कि इनकम निकालने के लिए कंजम्पशन मेथड होता है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये पढ़ा था कि कितना कंजम्पशन, कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो कि है ना कंज्यूमर करेगा ही करेगा, उसको अपन ने सी बार से डिनोट करा था। ठीक है, कंजम्पशन सी बार। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कंजम्पशन की इक्वेशन निकालते हैं कि कितना टोटल कंजम्पशन होगा। तो कंजम्पशन एक है ना हाउस होल्ड है ना मिनिमम कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा, उसको सी बार का नाम दे दिया था अपन ने। फिर अपन ने क्या देखा था उसके अंदर, फिर अपन ने ये देखा था उस कंजम्पशन की इक्वेशन के अंदर कि जो आपके डिस्पोजेबल इनकम होगी ना उसका सिर्फ एक पार्ट है ना, सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम का जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी कंज्यूमर की, उसका सिर्फ एक पार्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी देखा था अपन ने कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। इफ़ यू डोंट नो देन प्लीज़ विजिट चैप्टर नंबर 4 और प्लीज़ विजिट द वीडियो नेम्ड एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड द मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो एंड यू कैन फाइंड दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स की बात है। ओके, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, कि कितना वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, कितना कंज्यूम करेगा, वो कितना कंज्यूम करेगा। अगर उसको 100 रुपये मिलते हैं तो उसमें से मान लो 80% कंज्यूम करेगा, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब कितना सेव करेगा, तो 100 रुपये मिलेगा तो 20 रुपये सेव करेगा। ठीक है, तो 80% तो कंज्यूम करेगा और 20% सेव करेगा। तो ये अपन ने एजम्पशन ले ली यहाँ पे कि 80% कंजम्पशन हो गया और 20% सेविंग हो गया, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। ठीक है, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है अपना, या मेरी जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू उसका कुछ पार्ट तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन होता है प्लस कुछ पार्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मेरे को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन निकालना है तो टोटल इनकम 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कर दूँ, और अगर मेरे को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो टोटल इनकम माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। ओके ओके सर, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा था। तो अब आप बताना क्या चाहते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे अपन। सिर्फ आप चलते रहो, मैं आपको पूरा इसको लिंक करूंगा फिजिकल पॉलिसी के साथ में, पूरा लिंक करूंगा। अभी तो आप मेरे को बताओ टोटल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, कि एक तो मेरा मिनिमम कंजम्पशन होगा, फिर उसके साथ में जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी जो एक हाउस होल्ड को मिलेगी, उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर भाग वो कंज्यूम करेगा, पर्टिकुलर पार्ट विल बी कंज्यूम्ड एंड दैट पार्ट इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। अब इस फॉर्मूले को और मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ। ओके ओके सर, लिखो सर, दूसरी तरीके से लिखो इस फॉर्मूले को। तो मैं इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से इस तरीके से लिखता हूँ कि अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो कंजम्पशन निकालने के लिए सी बार, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी को अपने को मल्टीप्लाई करना वाई डी से। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, सी को मल्टीप्लाई करना वाई डी से। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं बेटा, कि जो उसकी इनकम होती है उसमें से गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, प्लस गवर्नमेंट एक कांस्टेंट अमाउंट है ना ट्रांसफर करती रहती है। ठीक है, तो ये डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है। सर डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कि आपकी इनकम माइनस टैक्सेस प्लस एक पर्टिकुलर अमाउंट जो गवर्नमेंट ट्रांसफर करती रहती है, ये आपका डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है। तो मैंने बस डिस्पोजेबल इनकम के टुकड़े करके आपको यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा है यही अपना डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, पहले भी मैंने ये करा था, सी बार प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनकम जो वो अर्न करता है और जो डिस्पोजेबल इनकम वो होती है उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड द ट्रांसफर विच इज बीइंग मेड। ओके सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपने। ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले हैं इसके अंदर, तो क्योंकि अपना जो ये हो गया अपना कंजम्पशन फंक्शन, अब मुझे अगर एग्रीगेट डिमांड निकालनी है कि कितनी एग्रीगेट डिमांड है, और यही मेरा जीडीपी होगा। ठीक है, जो मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर मेरा कंजम्पशन फंक्शन आ गया, प्लस मेरा जो इन्वेस्टमेंट करती है फर्म्स, प्लस जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा। CIG लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर आप CIG लिख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर, ठीक है, प्लस आई। तो बिल्कुल सर आप ऐसा लिख सकते हो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस डी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि अपने एक नेशनल अपने यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वही मेरी इनकम है। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी बार, ठीक है,
प्लस आई प्लस जी, ठीक है। तो ये मेरी है ना इनकम इज इक्वल्स टू, जो इक्वेशन एग्रीगेट डिमांड के इक्वल्स टू था वो मैंने इनकम के इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। अब मैं वाई वाई वालों को इधर ले लेता हूँ, ठीक है सर, ले लो वाई वाई वालों को इधर। तो वाई माइनस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर बार, ठीक है। इधर आ जाएगा सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। ये सारे जो आई जी और ये सी है ना, तो आप बार से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आई और जी हमेशा कांस्टेंट ही मानते हैं अपन कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को अपन अब सॉल्व करते हैं ऊपर लेके जाके। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि y को अपन कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा, है ना। y को अपन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में y के, ठीक है। ठीक है, 1 माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह 1 माइनस टी हो जाएगा प्लस टी आर, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस सी 1 माइनस टी और टी आर हो जाएगा, इधर ये हो गया और इधर अपना हो जाएगा सी बार प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, हम समझ गए, आपने वाई को यहाँ पे कॉमन में ले लिया, ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ पे वाई मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सी 1 माइनस टी प्लस टी आर इज इक्वल टू सी बार प्लस आई प्लस जी यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। ओके सर, तो अपन को ये पता था कि ये जो सी था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, एक मल्टीप्लाई में नहीं है, तो y मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू सी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस सी टी, ठीक है। ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी, तो यहाँ पे आएगा सी टी आर, ठीक है। ठीक है, इज इक्वल टू सी बार प्लस आई प्लस जी हो गया, ठीक है। तो अगर सी टी आर को इधर अगर अपन ले ले तो y मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस सी, ठीक है, प्लस सी टी और इज इक्वल टू सी बार, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस सी टी आर, ठीक है। तो ये इधर माइनस का प्लस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस आई प्लस जी, ठीक है। ठीक है सर, तो y और अगर अपन सी टी को भी इधर ले तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी बार माइनस सी टी प्लस सी टी आर, ठीक है, प्लस आई प्लस जी। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई सी बार माइनस सी टी प्लस सी टी आर, ठीक है, प्लस आई प्लस जी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बेटा। बिल्कुल सर, तो ये होती है इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, ये आप याद रख लेना। इसका डेरिवेशन कैसे करा वो मैंने आपको पूरा बता दिया, इसका डेरिवेशन अपनी एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले से ही हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में अगर आपको इनकम निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में अगर अपने को इनकम निकालनी हो तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये फॉर्मूला चाहे तो याद कर लो, चाहे डेराइव मैंने कैसे करा वो आप देख लो, ठीक है। ओके सर, अब अपन यहाँ पे बताएंगे कि चेंज इन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज होने से कितना है ना इनकम में चेंज होगा, ठीक है। तो उससे अपने को क्या गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अब आपको मैंने मल्टीप्लायर के बारे में नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको वापस एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्रीफ दूंगा मैं यहाँ पर, आपको टोटल नहीं बताऊँगा, है ना। तो बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर का तो मतलब होता है कि एक से अगर किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो एक से नहीं बढ़ेगी, वो एक से ज़्यादा से ही बढ़ेगी। मतलब द अमाउंट ऑफ इंक्रीज जो होगा मेरा इन आउटकम विल बी मोर देन अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। कुछ भी चीज़ में चाहे इन्वेस्टमेंट में मैंने जो इंक्रीज़ करा, गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ करा, उसकी वजह से जो इनकम में इंक्रीज़ होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब मैं ना अगर 100 रुपये से इंक्रीज़ करा तो 100 से नहीं 150 से होगा, 200 से होगा, 100 से ज़्यादा से ही होगा, उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई किसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि द अमाउंट या द रेट एट विच द टोटल डिस्पोजेबल इनकम और इनकम विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द 1 रुपीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अब अपन निकालेंगे, तो उसके लिए अपन वो पुराना वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाई सी बार, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाई सी बार, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सी बार माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस सी टी आर प्लस आई एंड प्लस जी, ठीक है। तो ये अपना हो गया वो फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ पे है ना, अब आपको ये चीज़ पता है कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है,
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होगा, ठीक है। CTR जो है वो ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो CT है, जो टैक्स है, वो कांस्टेंट नहीं है, उसको रखेंगे। C बार ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट चीज़ों को नहीं लेंगे। ये कांस्टेंट है तो इनको नहीं लेंगे, ये TR भी कांस्टेंट है तो इसको नहीं लेंगे, ये कांस्टेंट चीज़ें इनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो Y, चेंज इन Y कितना होगा, इनकम में कितना चेंज होगा, तो 1/1 माइनस C मल्टीप्लाई बाई C बाहर तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई बाई माइनस CT, ठीक है, CTR भी नहीं आएगा, I भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाई प्लस चेंज इन G, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे CT चेंज हो रहा है क्या, नहीं, टैक्सेस है सर, टैक्सेस चेंज नहीं हो रहा तो CT भी हटा दो। ओके सर, हमने CT भी हटा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो चेंज इन Y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस C मल्टीप्लाई बाई चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनकम में उतना चेंज होगा जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ, और वो मल्टीप्लाई हुआ 1/1 माइनस C। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ये है आपका, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, इसी फॉर्मूले से निकाला है। क्यों, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें ऑल अदर कांस्टेंट माना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मानी है कि सब चेंज नहीं होगी। तो जहाँ पे जब चेंज नहीं होगी तो उन चीज़ों का लेने का कोई मतलब नहीं है ना बेटा, क्योंकि इनकम में चेंज होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो इसलिए इनकम चेंज ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 1/1 माइनस C तो अपना फ्रैक्शन है, तो ये तो आना ही आना है, ठीक है। C बार कांस्टेंट होगा तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हटा दिया, ठीक है। CT कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा तो इसको हटा दिया। तो CT क्या है, C बार क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जाओ, आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। CTR भी अपना कांस्टेंट है, ये नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट, ये नहीं आएगा, सिर्फ G को चेंज कर रहे हैं अपने यहाँ पे, G को चेंज कर रहे हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान रहे हैं, इसलिए सिर्फ G आएगा। तो 1/1 माइनस C मल्टीप्लाई बाई चेंज इन G, ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे प्लस में जो थे बाकी सारे उनको 0 मान लिया अपन ने, और वो हट गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए G यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई निकालना हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस C। तो ये बेटा यहाँ पे फॉर्मूला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई का। तो जब भी एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई का, तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस C लिख देना आप, ठीक है। तो ये आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ठीक है सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एजम्पशन क्या थी कि टैक्स जो है ना बेटा, यहाँ पे एजम्पशन थी कि टैक्स सेम है, तो टैक्स लंपसम पे यहाँ पे एजम्पशन थी, ठीक है। ये एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। यहाँ पे टैक्स लंपसम था, यहाँ पे टैक्स प्रोपोर्शनल नहीं था, किंतु प्रोपोर्शनल होता तो चेंज होता ना बेटा, हर इनकम लेवल जैसे इनकम चेंज होती तो टैक्स भी चेंज हो जाता अगर प्रोपोर्शनल टैक्स होता तो प्रोपोर्शनल टैक्स का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्स इज अप्लाइड ऑन एज अ परसेंटेज ऑन द टोटल इनकम, ठीक है। तो अगर 1 लाख की इनकम है और 10% टैक्स है, तो 1 लाख पे 10% कितना होगा, 10,000, और अगर वही 2 लाख इनकम होगी तो उसका 10% 20,000 होगा। लमसम टैक्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स लेंगे, आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये लेंगे, चाहे आपकी इनकम 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, तो वो कभी चेंज नहीं हुई वो 10,000 रुपीज़। इसलिए हमने यहाँ पे एजम्पशन लेना जरूरी था कि इनकम टैक्स जो है वो कांस्टेंट है, तभी अपन यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई निकाल पाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई अपन इनकम टैक्स को चेंज करके भी निकाल पाएंगे, लेकिन उस केस में ये फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला में मैं डायराइव करना आपको सिखाऊंगा। उस फॉर्मूले में क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स। ये कौन सा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई इन केस ऑफ लमसम टैक्स। लमसम टैक्स के केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट क्योंकि सेम है इनकम टैक्स का, इसलिए अपन यहाँ पे चेंज में उसको लिया नहीं। Hi guys, we have studied about government expenditure multiplier. Now we are going to study about the tax multiplier. Okay, so government expenditure multiplier अपन ने किससे निकाला था, अपन ने इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन थी, वहाँ से अपन ने बाकी सब चीज़ें कंस्टेंट मान के सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जब चेंज माना था, तब क्या मल्टीप्लाई निकलेगा वो निकाला था। तो अभी अपन वापस से इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में इनकम क्या होगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, क्योंकि दोनों तो सेम ही होगी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में। 1/1 माइनस C मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, C बार मल्टीप्लाई बाई C बार माइनस CT प्लस CTR प्लस I एंड प्लस G, ये इक्विलिब्रियम के केस में इक्वेशन होती है बेटा, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि क्योंकि अपन ये मानेंगे कि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, गवर्नमेंट का जो है ना टैक्स है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज हम है ना इफेक्ट निकालते हैं गवर्नमेंट के टैक्स के चेंज होने का। सो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि अपन बाकी सब कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स में जब भी आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो आप दूसरी चीज़ें कॉन्स्टेंट मान लेते हो। ओके, तो अपन मानेंगे ये कॉन्स्टेंट है, अपन मानेंगे कि टैक्सेस चेंज करे तो CT तो चेंज होगा, इसलिए ये चेंज होगा। CTR अपन कांस्टेंट मानेंगे, I कांस्टेंट मानेंगे, G कांस्टेंट मानेंगे। ओके सर, सो क्या हो जाएगा, इनकम
इज इक्वल्स टू, तो चेंज इन इनकम कितना होगा, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, माइनस सी चेंज इन टी। ठीक है सर। सी क्या हो गया, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन ऑफ चेंज इन टैक्सेस। उतना जितना टैक्सेस में चेंज हुआ उतना उसका इफेक्ट कितना आएगा इनकम पे, जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन उसका। ठीक है सर। ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी करा है, बस चेंज इन टी डाल दे, बिकॉज अपन चेंज इन टी का इफेक्ट ही तो निकाल रहे चेंज इन वाई पे। यस सर, हम चेंज इन टी का इफेक्ट। तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी चेंज इन टी। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि चेंज इन वाई अपॉन ये जो चेंज इन टी, अगर मैं उसको इस साइड में लेके जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 1/1 माइनस सी के, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको यहाँ पे लिखो तो माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी इक्वल्स टू माइनस सी 1 माइनस सी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी बच जाएगा अपॉन 1 माइनस सी। तो ये अपना इनकम टैक्स का मल्टीप्लायर होगा। सर ये इनकम टैक्स का मल्टीप्लायर नेगेटिव में क्यों है, इसका लॉजिकल अगर मैं रीज़न दूँ आपको, फॉर्मूले में नेगेटिव क्यों है ये तो मैंने आपको बता दिया, सब चीज़ें कांस्टेंट मान के, और ये यहाँ पे नेगेटिव है। मैंने आपने इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन पढ़ी थी अपन ने, उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स की वजह से मेरा क्या होता है, कंजम्पशन कम होता है, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल सर हम समझ गए। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि टैक्स की वजह से अगर मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी कंजम्पशन के लिए वो कम हो जाएगी, तो टैक्स बढ़ाने से मेरा कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा टैक्स बढ़ाने से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से मेरा जो टोटल कंजम्पशन के लिए इनकम बचती थी वो बढ़ती थी, इस वजह से वो पॉजिटिव मल्टीप्लायर है और ये नेगेटिव मल्टीप्लायर है। ठीक है सर, तो हमने टैक्स का मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझ लिया। अब है ना हम टैक्स मल्टीप्लायर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन को समझेंगे कि इनमें से दोनों में से पावरफुल कौन सा है ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हमेशा ज़्यादा होगा टैक्स मल्टीप्लायर से, और वो ज़्यादा कितने से होगा, 1 से होगा। क्यों, तो इसका मैं टेक्निकल रीज़न आपको दे देता हूँ कि 1/1 माइनस सी, ठीक है, माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है सर, ये अपना हो गया। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा 1 माइनस सी, अपन कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस, ठीक है, माइनस 1 माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस सी तो कितना बचेगा 1, 1 माइनस सी कितना बचेगा 1 बचेगा सर, तो माइनस सी। ठीक है, तो 1 माइनस बचेगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल माइनस बचेगा, तो कितना हो गया अपना 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस सी डिवाइड बाय 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू 1। तो हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर से 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल सर हम समझ गए कि हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर से 1 से ज़्यादा होगा। अब मेरे को एग्जांपल दो सर, कि मान लो गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंडिचर 100 रुपये से बढ़ाया और साथ में 100 रुपये से टैक्स भी बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हो, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपना जो है वो 100 रुपये से बढ़ाया, साथ में टैक्स भी 100 रुपये से बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा सर कि एक्सपेंडिचर 100 रुपये से बढ़ाया, ठीक है सर, तो और टैक्स भी 100 से बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट का खर्चा 100 से बढ़ा और इनकम भी 100 से बढ़ गई, तो गवर्नमेंट का बजट क्या हो गया, पहले जैसे ही हो गया। तो गवर्नमेंट के बजट पे जो इफेक्ट आया वो नील इफेक्ट आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया चाल चल गई यहाँ पे। गवर्नमेंट हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल हियर बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर बाय 100 एंड इंक्रीजिंग द टैक्स बाय 100। इट हैज़ लेड टू equilibrium in the government budget because in order to finance the expenditure of 100 rupees it has also raised the tax of 100 rupees, but it will lead to have a higher impact in the total consumption. How? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से कितना है ना, इनकम बढ़ेगा 100 रुपये से, तो 1/1 माइनस सी। तो अपन यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं 80% MPC है और 20% अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का क्या आएगा, 100 रुपये से बढ़ेगा अगर एक्सपेंडिचर, तो कितना टोटल इनकम बढ़ेगा, तो 1/1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8, 1/0.2 इज इक्वल्स टू 5 है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। मतलब अल्टीमेटली 100 रुपये से अगर मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो उससे मेरी इनकम जो है वो 500 रुपये से बढ़ेगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, टैक्स एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से क्या होगा, माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। अभी अपन ने फॉर्मूले देखे थे दोनों के, आपको अच्छे से याद होगा, अभी करा था अपन ने। तो माइनस सी कितना हुआ 0.8,
माइनस सी 0.8, 1 माइनस 0.8 तो कितना है 4, नेगेटिव का 4, मतलब अगर 100 रुपये से टैक्स बढ़ाएगा तो नेगेटिव के 4 से 400 रुपये से इनकम कम होगी, ठीक है। तो 100 रुपये से मेरी इनकम बढ़ेगी नेट में मेरी 100 रुपये से इनकम बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट का बजट तो मतलब गवर्नमेंट का बजट तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो गया। गवर्नमेंट बिना 1 रुपये से खर्चा बढ़ाए 100 रुपये से इनकम बढ़ गई। अगर आप नेट में इफेक्ट देखोगे तो गवर्नमेंट के बजट पे बिना 1 रुपये का भार पड़े 100 रुपये में एक्चुअल में इनकम बढ़ गई मेरी यहाँ पे। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई टैक्स मल्टीप्लायर से बड़ा होगा। ओके सर, वी गॉट इट। तो अपन ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पढ़ लिया, अपन ने टैक्स मल्टीप्लायर पढ़ लिया, लेकिन ये दोनों अपन ने किस में पढ़े, जब टैक्स लमसम था। सो वी हैव स्टडीड दीज थिंग्स व्हेन टैक्स वाज लमसम। जब टैक्स लमसम था, अगर यहीं पे अगर टैक्स लमसम नहीं होगा और प्रोपोर्शनल होगा तो फिर क्या होगा। तो अपन प्रोपोर्शनल का केस भी पढ़ेंगे कि जहाँ पे टैक्स लमसम नहीं होगा और प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल हम पढ़ेंगे वो भी। तब क्या होगा जब टैक्स प्रोपोर्शनल होगा। टैक्स प्रोपोर्शनल होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जब लमसम टैक्स होता है ना, तब इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेरा टैक्स सेम रहेगा। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सर। अगर मेरा लमसम टैक्स होगा तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेरा टैक्स सेम रहेगा। अगर मेरा प्रोपोर्शनल टैक्स होगा सर, अगर मेरा प्रोपोर्शनल टैक्स होगा तो जैसे 10% ऑफ इनकम है अगर मेरा टैक्स, तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, टैक्स का जो अमाउंट है वो सेम नहीं रहेगा। तो उस केस में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स अपना कंजम्पशन का फंक्शन क्या होगा। प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में कंजम्पशन का फंक्शन होगा सी माइनस प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इनकम माइनस, पहले अपन टैक्स में सीधा टी कर देते थे, अपन क्या करेंगे अब टी मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि टी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम, इसलिए वो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। प्लस जो कंसेंट जो गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होता रहेगा वो, ये कंजम्पशन का फंक्शन होता था। इनकम का क्या फंक्शन होगा, सी बार प्लस सी वाई माइनस टी वाई प्लस टी आर, ये पहले से है ही है, प्लस आई हो जाएगा प्लस जी हो जाएगा, ठीक है सर। अब है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी, बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, ये अपन ने सॉल्व कर दिया इसको। अब अगर मैं ये जो सारे जो कंस्टेंट चीज़ें हैं जो मिनिमम होगी की होगी, इन सबको ए बार से डिनोट कर दो, तो बेटा ए बार मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो होगा कि होगा, ठीक है। अगर इन सबको मैं ए बार से डिनोट कर दूँ तो सर बिल्कुल कर दो आप ए बार से डिनोट, तो ए बार इन सब की जगह ए बार आ गया, ठीक है, प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई, बिल्कुल सर। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई और ये तीनों चीज़ें ए बार के नाम से जानी गई, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अपने पास क्या बचा, y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी वाई माइनस सी टी वाई। अगर मैं ए बार को इधर ही रखूँ और बाकी सबको y की तरफ लेके चला जाऊँ तो y माइनस सी, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी वाई हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस सी टी वाई हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। अगर मैं अब y को कॉमन लूँ तो बिल्कुल सर ऊपर लो आप कॉमन, कि अगर मैं यहाँ पे y को कॉमन लो तो क्या होगा सर, पहले इक्वेशन लिख दो, ए बार प्लस वाई माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई, ठीक है। अगर y को कॉमन लो तो यहाँ पे ए बार इज इक्वल्स टू आएगा ना, ए बार इक्वल्स टू वाई माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई। अगर y को कॉमन लूँ तो 1 माइनस सी, ठीक है सर। तो y की जगह 1 माइनस का माइनस, सी वाई में से y कॉमन है तो c बच जाएगा, प्लस यहाँ y कॉमन है तो सी टी बच जाएगा, बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो। अगर मैं y के साथ में ए बार इक्वल्स टू होगा कि होगा, ठीक है। अगर y के साथ में मैं 1 माइनस सी को भी अगर कॉमन ले लूँ तो बिल्कुल ले लो सर कॉमन, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों जगह सी से यही है, तो y मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस सी, दोनों कॉमन इसलिए मल्टीप्लाई में होगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस सी तो 1 बच जाएगा उसका,
बिल्कुल सर। 1 माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सर। फिर 1 माइनस सी का सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टी बचेगा सर। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे वाई 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाई को इधर ही रहने दूँ और इनको उधर लेके चला जाऊँ और ए को इधर लेके आ जाऊँ तो क्या रहेगा सर, चेंज इन वाई, इनकम में जो चेंज हुआ, अपॉन ए इधर आएगा तो वो उधर से इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन चेंज इन ए, जो भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, इक्वल्स टू ये 1 माइनस सी 1 माइनस टी उधर चले जाएंगे तो 1 अपॉन आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे ये, तो 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे ए की जगह आप आई डाल सकते हो, या जी डाल सकते हो, या सी बार डाल सकते हो, या सी टी आर डाल सकते हो, तीनों डाल सकते हो ए की जगह पे। ठीक है सर, जो जो आए उसकी जगह वो डाल दो और यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस सी अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका यहाँ पे टैक्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ये यहाँ पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो जाएगा इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस। वापस से फॉर्मूला लिखो एक बार, बिल्कुल हम वापस एक बार फॉर्मूला निकलते हैं कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी। ठीक है, 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ठीक है, इसके जगह मैं ये भी ले सकता हूँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। ठीक है, इस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की जगह आई भी लिख सकता हूँ, इस आई की जगह मैं सी टी आर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों ए बार की जगह है। ठीक है, ठीक है सर। अब सर ये बताओ कि दोनों में फ़र्क क्या हुआ। लमसम टैक्सेस में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था और जब प्रोपोर्शनल में है, दोनों में फ़र्क क्या होगा। 1 अपॉन 1 माइनस सी था, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी, ये है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है, फ़र्क क्या हुआ, चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं। 80% ये मान लेते हैं, 20% ये मान लेते हैं, MPC मान लेते हैं 80%, MPS मान लेते हैं 20% और टैक्स रेट मान लेते हैं अपन 25% का टैक्स रेट मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, हमने 25% टैक्स रेट मान ली। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन, जब लमसम का केस में कर रहे हैं अपन, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, 1 अपॉन 0.2, तो यहाँ पे हो गया 5 आ जाएगा मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो। ठीक है, 5 आ जाएगा, बिल्कुल सर 5 आ जाएगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स के केस में क्या होगा, जब लंबा प्रोपोर्शनल होगा तो 1 अपॉन 1 माइनस क्या होगा 0.8, 1 माइनस 0.25 हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 1 अपॉन 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना होगा, 1 माइनस 0.8। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.25। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 का आंसर क्या आएगा 0.75 आ गया। ठीक है, ठीक है सर, 0.75 आ गया। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना होगा 0.6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.4। ठीक है, 1 माइनस 0.6 कितना होगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कहाँ पे 5 आ रहा मल्टीप्लायर, कहाँ पे 2.5 आ रहा मल्टीप्लायर। ठीक है, ठीक है सर, बहुत कम हो गया मल्टीप्लायर। मतलब अगर 100 रुपये से एक्सपेंडिचर यहाँ पे लमसम में इंक्रीज़ करते तो 5 गुना कंजम्पशन बढ़ जाता, जबकि अगर यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स 100 रुपये इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ ढाई गुना बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे 100 रुपये से 500 रुपये हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये से 500 रुपये हो रहा है, यहाँ 100 रुपये से सिर्फ 250 रुपये हो रहा है। तो इस तरीके से है ना, अपन प्रोपोर्शनल टैक्स जब यूज़ करती है ना गवर्नमेंट, तो उसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। क्यों कहते हैं सर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेज द इकोनॉमी। ठीक है, ठीक है सर, ये ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। सर कैसे करती है ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज इकोनॉमी को, ये इस तरीके से करती है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, उससे 500 रुपये 100 रुपये से एक्सपेंडिचर बता दें, 500 रुपये से है ना इनकम बढ़ जाएगी, उससे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी नहीं हुई या सप्लाई उतनी ही हुई। ठीक है, और डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पे प्राइस इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो सकता है। लेकिन अगर मेरा है ना, मेरा टैक्सेस है ना, वहाँ पे क्या हुआ, प्रोपोर्शनल अगर टैक्सेस हुआ तो 100 रुपये से सिर्फ मेरा 250 रुपये ही इनकम बढ़ेगी, तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने के केस में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी जितना है ना लमसम के केस में बढ़ेगी। और अगर एक्सपेंडिचर कम करा गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंडिचर कम करा, मतलब करा ही नहीं या टैक्स रेज कर दिया, तो जो डिमांड गिरेगी ना, जो इनकम गिरेगी वो उतनी नहीं गिरेगी जितनी की है ना
जितने की गिरती अगर है ना लमसम होता, मतलब 100 से अगर एक्सपेंडिचर कम करा तो 500 से डिमांड गिरती, 500 से गिरती इनकम गिरती, 500 से इनकम गिरती तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, लेकिन अब इनकम सिर्फ 250 से ही गिरेगी। तो चाहे एक्सपेंडिचर बढ़ाए चाहे घटाए, दोनों केस में ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेशन फंक्शन इन केस ऑफ द लमसम टैक्सेस। तो लमसम टैक्सेस के केस में जो फंक्शन होता है ना इसका, वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेशन का फंक्शन होता है। इसलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब है ना अपना टैक्स क्या होगा, जब अपना टैक्स है ना प्रोपोर्शनल होगा ना, तो एवरी लेवल, एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू जब लमसम था। अगर इसको अपन शो करें तो इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं बेटा कि ये तो अपनी 45 डिग्री की लाइन है जिससे अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। ये मेरी पहले है ना, ये मेरा पहले है ना एग्रीगेट डिमांड था, और अब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा मेरा, जब मैंने यहाँ पे, जब मेरा प्रोपोर्शनल टैक्स होगा ना बेटा, जब मेरा टैक्स प्रोपोर्शनल होगा तब क्या हो जाएगा मेरा एग्रीगेट डिमांड, तब मेरा एग्रीगेट डिमांड ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो स्टीप, वो ज़्यादा फ्लैटर हो गया है, ठीक है। मैं इसको वापस से ढंग से बताता हूँ आपको। ये मेरा 45 डिग्री, ये मेरा पहले है ना एग्रीगेट डिमांड था यहाँ पे, ठीक है। अब जो एग्रीगेट डिमांड होगा ना बेटा वो ऐसे हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड ऐसे हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझे बेटा? बिल्कुल सर समझे हम। मतलब क्या समझे आप यहाँ पे? मतलब हम ये समझे सर कि एग्रीगेट डिमांड जो होगा ना बेटा, वो एग्रीगेट डिमांड जो होगा ना वो और ज़्यादा, अगर मैं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट में गिराऊंगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट गिराऊंगा ना, ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट गिराऊंगा तो मेरा एग्रीगेट डिमांड ऐसे पहले यहाँ पे हो रहा था, अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो पहले मेरी इनकम यहाँ पे थी, अब मेरी इनकम ये हो गई। पहले मेरे एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये था, अब मेरा एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये हो गया ड्यू टू रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। अगर मैं टैक्सेस रिडक्शन करूँगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल टैक्स रिड्यूस करूँगा ना, तो प्रोपोर्शनल टैक्स जैसे ही रिड्यूस करूँगा उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक लेवल पे आपका इनकम बढ़ेगा। पहले सिर्फ एक बार इनकम बढ़ जाता था बिकॉज आपका टैक्स हर लेवल पे वही रहता था, लेकिन अब हर एक लेवल पे टैक्स कम होगा क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनल टैक्स रेट कम कराया है, ठीक है। तो हर एक लेवल पे डिमांड बढ़ेगा। इस तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनल टैक्स रेट जो होता है ना, उसके केस में क्या होता है कि ये जो डिमांड की जो कर्व होती है वो और ज़्यादा फ्लैटर होती है। अब है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। तो जब मेरा पहले यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन है मेरे पास, ठीक है सर। अब जो पहले 45 डिग्री की लाइन है ना बेटा, ठीक है, उसमें है ना ये मेरा गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बाद में ये मेरी एग्रीगेट डिमांड थी, ठीक है। जहाँ पे मेरा सी बार प्लस क्या हो जाएगा, मेरा सी बार, वो मेरी पूरी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे जो मेरे एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन है। बिल्कुल सर, एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। पूरी इक्वेशन तो लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे। अब जब मेरा है ना, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, ठीक है, अगर मेरा प्रोपोर्शनल टैक्स होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो लाइन होगी ना वो लाइन ऐसे आ जाएगी बेटा, ठीक है। मतलब ये फ्लैटर हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बना रहे हो, हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा आप सिंपल सी बात बताओ, क्योंकि अब हर लेवल पे टैक्स बढ़ेगा, हर लेवल पे आपका जो टैक्स होगा वो अलग होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उतना उतना टैक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम होगी, जो आप है ना यूज़ करोगे, वो भी कम होगा। और अब है ना जो इफेक्ट आएगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से, वो इफेक्ट उतना ज़्यादा फ्लैट स्टीप नहीं होगा जितना ज़्यादा पहले होता था, और फ्लैटर हो जाएगी। जब ये आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और उस टाइम है ना आप जब सॉल्व करोगे और जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विथ लमसम टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विथ प्रोपोर्शनल टैक्सेस बनाओगे, और फिर उसको है ना आप ग्राफ पे प्लॉट करना, आपको इजीली समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा क्या लाइनें खींच रहा हूँ मैं, है ना। बस आप ये समझो मैं कंसेप्ट पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना आपको?
बिल्कुल सर, हमको कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि प्रोपोर्शनल टैक्सेस से हर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे मेरा जो डिस्पोजेबल इनकम वो कम होगी। लमसम टैक्सेस पे सिर्फ एक लेवल पे कम होगी, बिकॉज वो तो लग गया, चाहे मैं 1 रुपया कमाऊँ, चाहे मैं 10 लाख रुपये कमाऊँ, मेरे पे सो अब अपन पढ़ने वाला है कि गवर्नमेंट ट्रांसफ़र मल्टीप्लायर क्या होता है। कि जिस तरीके से अगर 10 रुपये का ट्रांसफ़र अगर गवर्नमेंट करती है ना, तो कितने रुपए से है ना टोटल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, ये अपन ने पता करने वाला है, ठीक है। तो ये जो होगा ना, इट विल बी लोअर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से तो कम ही होगा। क्यों सर, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से कम क्यों होगा? ये इसलिए कम होगा बेटा, बिकॉज जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है उसका एक पार्ट कंज्यूम हो कर देगा गवर्नमेंट हाउस होल्ड और एक पार्ट सेव कर लेगा। तो सेविंग करने की वजह से टोटल जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है वो वापस इकोनॉमी में नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट जो टोटल एक्सपेंडिचर करती है वो टोटल इकोनॉमी में जाता है, ठीक है, ठीक है। इस वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से गवर्नमेंट ट्रांसफ़र मल्टीप्लायर कम होगा। सर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसको निकालना आपको सिखाते हैं अभी हम, कि आप जानते हो कि इनकम इज इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, जिसको अपन ये भी लिख सकते हैं सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी प्लस सी टी आर प्लस आई प्लस जी। क्योंकि अगर अपन को ट्रांसफ़र मल्टीप्लाई निकालना है तो अपन मानेंगे गवर्नमेंट ट्रांसफ़र जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो इनको हटा देंगे अपन, ठीक है। सी वाई जो है, जो इनकम ये है, ये भी अपन मानेंगे ये चेंज नहीं हो रहा, टैक्सेस भी मानेंगे चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये अपन मानेंगे कि ट्रांसफ़र चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर अपन ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है कि 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाई ये पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस सी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टी आर, ठीक है, ठीक है सर, MPC होता है ये, ठीक है। अब चेंज इन टी आर को अगर अपने इधर लेके आ जाए तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर इज इक्वल्स टू सी अपॉन 1 माइनस सी, ये होता है अपना ट्रांसफ़र का मल्टीप्लायर। ओके ओके सर। और ट्रांसफ़र का मल्टीप्लायर कम होता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर से, ये एक्सप्लेन करो सर कैसे कम होता है। तो ये हम अभी आपको बताते हैं। समझ लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन हो गया मेरा 80% एंड मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया मेरा 20%, ठीक है, ठीक है सर, हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, एक तरफ निकालते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, एक तरफ निकालते गवर्नमेंट ट्रांसफ़र मल्टीप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1 माइनस सी 0.8 इज इक्वल्स टू 1/1.2 इज इक्वल्स टू 5। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, C/1 माइनस सी, तो सी क्या हुआ 0.8 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 0.8 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू 4। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से ये कम है गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर। बिल्कुल सर, हम समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन 3 मल्टीप्लायर पढ़े हैं। सबसे पहला मल्टीप्लायर जो अपन ने पढ़ा वो मल्टीप्लायर पढ़ा अपन ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर अपन ने पढ़ा टैक्स मल्टीप्लायर, फिर अपन ने पढ़ा गवर्नमेंट ट्रांसफर, फिर अपन ने पढ़ा प्रोपोर्शनल टैक्स के केस में क्या होगा और लमसम टैक्स के केस में क्या होगा, ठीक है, ठीक है सर, हम ये मल्टीप्लायर्स पढ़ चुके हैं। ओके ओके सर। तो अब अपन क्या पढ़ने वाला, डेट के बारे में पढ़ने वाला, गवर्नमेंट डेट। दूसरा जो टॉपिक अब अपन लेने वाले हैं बेटा, वो लेने वाले अपन डेट के बारे में। तो डेट के बारे में सर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डेट के बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। सो गवर्नमेंट डेट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट में अपन क्या पढ़ने वाला है कि डेट होता क्या है, ठीक है, ठीक है सर। तो डेट कैसे, क्यों लेती है गवर्नमेंट डेट? बेटा क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिशिएट में जब चलता है ना बेटा, when government budget is in deficit then government has to finance that deficit। कैसे फाइनेंस कैसे करेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि when government expenditure increases the revenue, means when the government expenditure is more than the government का revenue, then there is a gap which has to be financed by the government। क्योंकि अगर मेरे को 5 लाख का एक्सपेंडिचर करना है और 2 लाख की रिसीट है तो 3 लाख कहाँ से लाऊंगा, वो मेरे को फाइनेंस करना पड़ेगा। तो उसके फाइनेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं बेटा? इसके 3 तरीके होते हैं बेटा। या तो मैं टैक्सेशन बढ़ाऊँ, या मैं क्या करूँ डेट लूँ, या मैं क्या करूँ मनी प्रिंट करूँ।
तो मनी प्रिंट करने के लिए गोल्ड चाहिए, जो कि आपको वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे देना पड़ता है। तो मनी प्रिंट कर सकते हो आप, टैक्स बढ़ा सकते हो आप, डेट बढ़ा सकते हो। तो जो मोस्टली यूज़ होता है ना बेटा, जो इंडियन गवर्नमेंट मोस्टली यूज़ करती है वो करती है डेट ले लेती है हमेशा। ठीक है, ओके सर, वी गॉट इट। हमेशा इन ऑर्डर टू फाइनेंस द गवर्नमेंट बजट, द डेफिशिट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, द गवर्नमेंट टेक द डेट एंड विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट डेट। अब डेफिशिट एंड डेट में क्या डिफरेंस होता है सर? आप बार बार कभी डेफिशिट यूज़ कर रहे हो, कभी डेट यूज़ कर रहे हो। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेफिशिट एंड डेट? ठीक है, और तो डेफिशिट एंड डेट के बीच में डिफरेंस अपन पढ़ते हैं अभी बेटा। ठीक है, तो डेफिशिट क्या होता है बेटा? जैसे मैंने आपको है ना स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट बताया था। बिल्कुल सर, हमें याद है। याद नहीं है तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। स्टॉक क्या होता है? ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। ठीक है, स्टॉक होता है ठहरा हुआ पानी, फ्लो होता है बहता हुआ पानी। फ्लो क्या होता है बेटा? बहता हुआ पानी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो? स्टॉक इज ठहरा हुआ पानी, फ्लो इज बहता हुआ पानी। ओके ओके, सो वी गॉट इट। ठीक है, तो मैं स्टॉक एंड फ्लो से आपको कंपेयर करते हुए यहाँ पे बताता हूँ डेफिशिट। ठीक है, तो डेफिशिट क्या होता है? डेफिशिट ये यहाँ पे पानी की नल बना देते हैं अपन, यहाँ पे पानी आ रहा है, ये टंकी बना देते हैं अपन पानी की। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये पानी है, इसके अंदर पानी क्या है? डेट है। डेट इज स्टॉक। गवर्नमेंट का डेट स्टॉक होता है और जो डेफिशिट होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, मीन्स द अमाउंट ऑफ द डेफिशिट इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट एवरी ईयर एड्स टू द अमाउंट ऑफ द डेट विच द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी। ठीक है, तो डेट एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, डेफिशिट आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम डेफिशिट एंड डेट के बीच का डिफरेंस भी समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाला है कि गवर्नमेंट का जो डेट होता है ना वो बर्डन होता है कि नहीं होता है, फिर अपन डेट को फाइनेंस कैसे करेंगे वो पढ़ने वाला है। ठीक है, ठीक है सर। तो अपन यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वेदर डेट इज बर्डन सम। डेट एक भार होता है क्या? क्यों? क्योंकि अगर आप आज डेट लेते हो, इफ गवर्नमेंट टेक डेट टुडे, तो मतलब क्या कर रही है वो? इसका जो भार है, वो इसका जो बर्डन है, तो वो बर्डन को क्या कर रही है? शिफ्ट कर रही है टू फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन पर ये बर्डन शिफ्ट कर रही है। सर कैसे कैसे कैसे? क्योंकि आज मैंने डेट लिया, वो कभी ना कभी तो मुझे रीपे करना पड़ेगा, उसका मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आज तो मेरे पास पैसा आ गया, लेकिन उसको रीपे मेरे को 20 साल बाद में करना है, 20 ईयर्स बाद में मेरे को रीपे करना है। तो जब मेरे को रीपेमेंट का बारी आएगा 20 साल बाद में, जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी, तो मुझे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे 20 साल बाद में। तो आज से 20 साल बाद की जो जनता है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मी। सो आई एम शिफ्टिंग द बर्डन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इस वजह से डेट को आप बर्डन मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। लेकिन एक है ना, एक थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल थ्योरी है। वो थ्योरी क्या कहती है कि डेट बर्डन नहीं होता। क्यों? वो कहती है कि तुम चाहे डेट लो आज और फ्यूचर जनरेशन पे ज़्यादा टैक्सेस लगाओ, या तुम आज ज़्यादा टैक्सेस लो और फ्यूचर जनरेशन पे आगे टैक्सेस नहीं लगाओ, दोनों का सेम इफेक्ट होता है। मतलब उस थ्योरी को कहते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। पहले आप समझ लो, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या बोलता है? रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोलता है कि डेविड रिकार्डो नाम का एक 19th सेंचुरी में बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट था, हु टोल्ड कि अगर आज आप टैक्सेस बढ़ाओगे या फिर आप टैक्सेस फ्यूचर में बढ़ाओगे, दोनों का सेम इफेक्ट होता है। मतलब या तो मैं आज डेट लूँ और टैक्सेस नहीं बढ़ाऊँ, आज मैं डेट लूँ, या फिर मैं डेट नहीं लूँ और आज मैं टैक्सेस बढ़ा दूँ, दोनों का जो इफेक्ट वो सेम होता है। क्योंकि वो क्या बोलता है कि जब डेफिशिएंट होता है ना गवर्नमेंट के बजट में, तो पीपल सेव मोर।
उनका ये कहना है कि जब गवर्नमेंट के बजट में डेफिशिएंट होता है तो पीपल सेव मोर। अब इन्होंने कैसे प्रूव करा, उन्होंने बोला कि अगर मैं, हम इसको हटाते हैं अपन, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। अगर मैं आज डेट लूँगा, ठीक है, आज मैं अगर डेट लूँगा तो कम टैक्स होगा, कम टैक्स होगा, तो लोगों के पास क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी। लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करेंगे, उसका ये मानना है। क्योंकि डेफिशिएट है गवर्नमेंट बजट में, तो कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करेंगे, वो सेव ज़्यादा करेंगे। तो वो ज़्यादा सेव करेंगे तो आज जो अमाउंट सेव करके बचा, आगे जाके जब टैक्स ज़्यादा लगेगा फ्यूचर में जब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो पुरानी सेविंग काम आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब बर्डन नहीं पड़ा। ठीक है, तो मतलब आज डेट लेके फ्यूचर में टैक्स लगाऊंगा तो बर्डन नहीं पड़ा, क्योंकि टैक्स आज डेट लेने की वजह से टैक्स आज कम लगेगा, टैक्स पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, डेट मेरे को मिल गया, तो उस वजह से उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, फिर भी वो कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, और वो जो सेविंग है वो आगे जाके काम आएगी। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या होगा, आज डेट नहीं लिया, आज टैक्सेस ज़्यादा ले लिए, तो आज टैक्सेस ज़्यादा ले लिए, ठीक है, तो टैक्सेस ज़्यादा ले लिए तो इनकम कम हो गई, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम नहीं होगा, क्योंकि वो सेविंग नहीं करेंगे, वो सेविंग कम करेंगे, तो कंजम्पशन आज का तो वो की वो रहा, आज का कंजम्पशन वो की वो रहा। और आगे जाके डेट नहीं लिया तो इंटरेस्ट भी नहीं है, आगे जाके फ्यूचर में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आगे का जो इनकम है वो भी इफेक्ट नहीं हुआ, आज का भी इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सेविंग कम कर दी उन्होंने। तो इस तरीके से चाहे तुम आज डेट लो चाहे आज डेट मत लो, आज ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करो चाहे टैक्स आज ज़्यादा कलेक्ट मत करो, सब सेम इफेक्ट होता है रिकार्डन के अकॉर्डिंग। और ये थ्योरी है, सो इट डजंट मीन कि ये हमेशा होता है। ठीक है, फिर अपन डेट के बारे में कुछ और बातें करते हैं। सर क्या बातें करनी है डेट के बारे में, अपन डेट के बारे में और भी बातें करेंगे। वो क्या बातें करेंगे कि सबसे पहले अगर जो डेट होता है, कि सबसे पहले मेरा जो डेट है ना बेटा, तो सर हाँ जो आपका डेट है वो, कि मेरा जो डेट है ना बेटा, वो डेट अगर इंटरनल पार्टी से है विद इन द कंट्री, इंटरनल मतलब इंडिया का इंडिया में ही है, अगर वो इफ़ इट इज़ विद इन द कंट्री देन नो वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई सर नो वरीज, बिकॉज वी ओ इट टू आवर सेल्फ, मतलब सर हम खुद ही से मांगते हैं, इंडिया के लोगों से ही पैसा मांगते हैं। सो देयर इज़ नो वरी, देयर इज़ नो आउटफ्लो विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर ये एक्सटर्नल है तो वरी की बात है। वाई इज बिकॉज वी ओ इट टू थर्ड पार्टी, क्योंकि हम ये थर्ड पार्टी को वो करते हैं, इसलिए यहाँ पे वरी की ज़रूरत है। ठीक है सर, तो डेट इंटरनल और एक्सटर्नल है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे सर, अब आगे अपन ये पढ़ने वाले हैं कि डेट जो होता है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेट इन्फ्लेशनरी होता है, मतलब हायर डेट लिया मैंने, उससे क्या होगा, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डेट से ही पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, तो उनके पास जो टोटल जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, और ये बोलते हैं कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड इक्विवेलेंस बोलता है कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है सर, इस तरीके से इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत है डेट के बारे में। ठीक है, और अगर डेट जो है मैं यूज़ करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अगर गवर्नमेंट डेट लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेट ऑफ रिटर्न है जो मिल रहा है वो हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेट है, मतलब मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं और मेरे को 8 रुपये ही देने पड़ रहे हैं, तो 2 रुपये के फ़ायदे में ही हो आप, तो डेट लेने से कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन विच द इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड इज़ मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू पे ऑन डेट, देन इट इज़ बेनिफिशियरी, इट विल लीड टू ग्रोथ इन इकोनॉमी। बिल्कुल सर, हम समझ गए। फिर अब डेट कम कैसे करेंगे सर, ये बताओ आप डेट कम कैसे करेंगे, ये भी बता दो सर कि डेट कम कैसे करेंगे। तो अपन अब आते हैं रिडक्शन ऑफ डेट, है ना, रिडक्शन ऑफ डेट के बारे में बात करते हैं कि डेट को रिड्यूस कैसे करेगी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले डेट किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू
एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू में डेट को कम करना है तो मतलब रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू में टैक्स का रेवेन्यू होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दोनों में से जो भी बढ़ाना आप बढ़ाओ। या PSUs को सेल करो और या फिर आप जो अदर रिसीट है आपकी वो बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरीके से या तो रेवेन्यू बढ़ाओ या एक्सपेंडिचर कम करो आप, ठीक है। तो आप अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो आप एक्सपेंडिचर कम करो और उस तरीके से आप डेट को रिडक्शन करो, ठीक है। अब बिना कुछ करे भी डेट कम ज़्यादा हो सकता है। कैसे सर बिना कुछ करे डेट कम ज़्यादा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि बिना कुछ करे डेट कम ज़्यादा कैसे हो सकता है। अब देखो, अगर मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो मेरा डेट जो होगा ना वो कम हो जाएगा। और मेरी इकोनॉमी में अगर रिसेशन है, डेट बोल सकता हूँ या डेफिशिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डेफिशिट की बात कर रहा हूँ, DEFICIT, ठीक है। तो डेफिशिट जो होता है ना मेरा गवर्नमेंट बजट का, सॉरी मैं डेट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिशिट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का जो डेफिशिट है, इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। If the economic condition of the country is inflationary, then the deficit will reduce automatically without doing anything, without taking any measure. And if the economic condition of a particular country is recessionary, then the deficit will reduce automatically without doing anything. कैसे सर? कि अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन है तो मतलब लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाईज थोड़ी सी कम है और प्राइजेस ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास आएंगे वो बढ़ेंगे। जैसे ही टैक्सेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे डेफिशिट कम होगा। कैसे? टैक्सेस बढ़ गया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया बैठे बैठे तो डेफिशिट कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर रिसेशन है तो मेरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिरेगा, मेरा जो इनकम है वो गिरेगा, उस वजह से टैक्सेस गिरेंगे और बैठे बैठे गवर्नमेंट का डेफिशिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, बैठे बैठे गवर्नमेंट का डेफिशिट बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अब ये क्यों लेके आए सर? FRBM है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्यों लेके आए? ये एक्ट इसलिए लेके आए बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू इंश्योर कि जो गवर्नमेंट डेफिशिट है ना वो कंट्रोल रहे, उस वजह से ये एक्ट लेके आए। इस एक्ट में क्या बोला इन्होंने सिंपल सा बोला कि जो फिजिकल डेफिशिट है वो सिर्फ 3% ऑफ गवर्नमेंट बजट होना चाहिए। दूसरी बात, एवरी ईयर, हर साल एवरी ईयर इनको क्या करना पड़ेगा, 0.3% ऑफ GDP से, है ना, फिजिकल डेफिशिट कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एंड 0.5% ऑफ GDP से जो मेरा रेवेन्यू डेफिशिट है वो कम करना पड़ेगा। ये एक्ट बोलता है कि गवर्नमेंट आप कम करो। फिर ये बोलता है कि आप रेवेन्यू डेफिशिट को ख़त्म करो, रेवेन्यू डेफिशिट को ख़त्म करो, रेवेन्यू सरप्लस लेके आओ, रेवेन्यू सरप्लस लेके आओ, रेवेन्यू डेफिशिट को कम करो, ठीक है। अब डेफिशिट हो सकता है, उसके एक्सेप्शन दिए इन्होंने कि कोई बात नहीं, डेफिशिट हो गया और वो कंट्रोल नहीं हुआ तो इन केसेस में कंट्रोल नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर डेफिशिट हुआ है नेशनल सिक्योरिटी पे एक्सपेंस करने की वजह से, ठीक है, इफ़ द डेफिशिट इज ड्यू टू द मेकिंग ऑफ द एक्सेप्शन ऑन द नेशनल सिक्योरिटी और ड्यू टू नेशनल कैलेमिटी, अगर कोई नेशनल कैलेमिटी हो गई है मेरे, ठीक है, उस वजह से मेरा जो है टोटल वो जो है डेफिशिट बढ़ गया, या कोई भी दूसरा एक्सेप्शनल ग्राउंड की वजह से। और है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एडवांसेस टू मीट द टेम्परेरी एक्सेस ऑफ कैश डिस्बर्समेंट। एडवांसेस ले सकती है सिर्फ RBI से। RBI कभी सब्सक्राइब नहीं करेगा प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर द मेजर टू बी टेकन टू इंश्योर द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन। देन सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, द फिजिकल पॉलिसी एंड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड द क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द ट्रेंड इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन इन द बजट टू बी प्लेस बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स क्वार्टरली रिव्यू करना पड़ेगा आपका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के ट्रेंड में, और वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। मतलब पांचवी चीज़ क्या हुई सर? 4 चीज़ें हो गई हैं। पांचवी चीज़ हुई, RBI से बोरो नहीं करेगा,
ठीक है, नहीं करेगा। आरबीआई जो है वो सब्सक्राइब भी नहीं करेगा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और इन सब चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। इट विल नॉट सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इशू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी फिस्कल ऑपरेशन में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी। फिर 3 स्टेटमेंट गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट देगी गवर्नमेंट पहले। फिर दूसरा क्या देगी, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट देगी। फिर तीसरा क्या देगी, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, MFS, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देगी, ठीक है। ये अपने हाईलाइट्स है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के। अब अपन जो तीसरी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले GST के बारे में। व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अपन GST के बारे में पढ़ने वाले हैं कि GST क्या होता है बेटा। तो GST के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझाता हूँ, बिकॉज वी हैव स्टडीड इट अ वेरी डीप। 100 मार्क का हमारा सब्जेक्ट होता था बेटा, ये 100 मार्क का सब्जेक्ट होता था CA फाइनल में एंड CA इंटरमीडिएट में भी होता था, ठीक है। तो मैं GST को बहुत ब्रीफ में समझाता हूँ आपको। GST क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लगता, ये पर्टिकुलर चीज़ों पे लगता है, ये चीज़ों पर लगता है, इस वजह से। ठीक है, डायरेक्टली नहीं लगता, ये चीज़ों पर लगता है, ये मतलब इनडायरेक्टली लगता है। ये सिर्फ उस पर लगेगा जो उसको परचेज़ करेंगे, जो उन चीज़ों को परचेज़ करेंगे सिर्फ उन लोगों पे लगेगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फिर GST में कितने तरीके के टैक्स होता है, मतलब क्या कंपोनेंट होते हैं GST के। तो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स एंड IGST, 3 तरीके का GST होता है। अगर आपका एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो जाता है, राजस्थान का ट्रांजेक्शन है, राजस्थान में ही हो जाता है, सप्लायर राजस्थान का है, रेसिपिएंट भी राजस्थान का है, तो CGST प्लस SGST लगेगा। अगर सप्लायर राजस्थान का है, रेसिपिएंट महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है माल, तो वहाँ पे IGST लगेगा। तो इंटर स्टेट मूवमेंट जहाँ पे होगा, इंटर स्टेट मूवमेंट पे IGST लगेगा, ठीक है सर। CGST SGST विद इन स्टेट पे लगेगा, और अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होगा तो IGST लगेगा, ठीक है। अब इनकी जो रेट्स होती है ना, वो डिपेंड करती है 0.25% से लगा के मैक्सिमम 20% हो सकती है CGST SGST के केस में, IGST के केस में मैक्सिमम 40 हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो ये 20 + 20 40 होती है, और ये अकेली 40 होती है, ठीक है। CGST सेंट्रल को जाता है, SGST उस स्टेट को जाता है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हुआ। अगर राजस्थान में गुड्स कंज्यूम हुआ तो 20% राजस्थान की गवर्नमेंट को जाएगा, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। और अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हुआ तो 40% मोदी जी को जाएगा, उसमें से मोदी जी 20% निकाल के जिस स्टेट में वो गुड्स गया है उस स्टेट को दे देंगे, ठीक है। तो जाएगा तो 20% ही सेंट्रल के पास, लेकिन वो अलग तरीके से जाएगा। अभी आप कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, बस थोड़ा सा दिमाग मत लगाओ, आप समझ लो CGST होता है, SGST होता है, और दोनों को मिला के IGST होता है, ठीक है, ठीक है सर। अगर है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना लफड़ा नहीं चाहती, वो नहीं चाहती दोनों इससे लड़े, इसलिए वो कहती है पूरा मुझको दे दो, मैं बाद में ना उस स्टेट को दे दूंगी जो लायक होगा उसके, जिसको ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स होता है 3 तरीके का होते हैं, CGST SGST IGST, ठीक है। फिर जो GST होता है वो परचेज एंड सेल्स पे लगता है, इट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेल्स बोल सकते हो या सप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। तो GST इज अप्लीकेबल व्हेन इट इज़ अप्लाइड। कब GST अप्लीकेबल होता है, कब GST पे करना होता है, ऑन द सेल या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब होता है तब GST आपको देना होता है। किन किन पे GST नहीं लगता, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे GST लगता है। बस 5 पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं जिस पे GST नहीं लगता, ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिस पे GST नहीं लगता। मतलब पेट्रोल में क्या आता है, पेट्रोल आता है, और पेट्रोल के 5 तरीके के पेट्रोल होते हैं, उसमें GST लगता, ठीक है। ओके सर, 5 पेट्रोलियम पे नहीं लगता। फिर किस पे GST नहीं लगता, GST में और भी चीज़ें होती है जिस पे नहीं लगता,
एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, फाइन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता। लेकिन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगेगा और दूसरा जो पुराना टैक्स है वो भी लगेगा, ठीक है। इन पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, इन पे पुराना वाला टैक्स ही लगेगा जो पहले लगता था। लेकिन बेटा टोबैको जो होता है ना बेटा, टोबैको एंड टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन पे जीएसटी भी लगेगा और पुराना वाला टैक्स भी लगेगा जो लगता था। पुराना मतलब एक्साइज, वैट, ये भी लगेंगे। ओके सर, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था सर? 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जीएसटी के कुछ फ़ायदे बताओ सर, जो एग्ज़ाम में अगर आ गया हमारे कि सर जीएसटी के फ़ायदे क्या है, तो बेटा सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी इससे, एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स हो गया है, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स हो गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ठीक है। ओके सर, ह्यूमन इंटरफेरेंस रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेरेंस बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस रिड्यूस हो गया है। फिर टैक्स बेस बढ़ गया है। टैक्स बेस कैसे बढ़ा सर? पुराने जो टैक्स रेजिम था उसमें ज़्यादा अमाउंट की है ना, इसमें जो एग्जम्पशन दी हुई थी ना, बहुत सारी चीज़ों को एग्जम्पशन ख़त्म कर दी है जीएसटी में। पहले है ना इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जम्पशन बहुत ज़्यादा गुड्स पे थी, अब उतनी गुड्स पे नहीं है जितनी जीएसटी में है, बहुत कम गुड्स पे हो गई है, ठीक है। एंड अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। तो ये 5 बेनिफिट आप लिख दो। वैसे बेनिफिट तो आप कितने भी गिना सकते हो, लेकिन ये 5 बेनिफिट आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। बेनिफिट तो मैं आपको कितने भी लिखवा दूँ। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें अपन ने गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने डेट के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने जीएसटी के बारे में पढ़ा। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं जल्दी ही चैप्टर नंबर 6 का वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कॉमर्स की बातें। कीप वॉचिंग KSJ क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।